Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English grammar class. Student, as you know that in the previous class we have started lesson number 5 named clauses, and as I told you in the last class that I will divide this chapter into 3 parts. Okay, because it is such a long chapter, there are so many content in this chapter, so it all needs explanation. So this is the second part, in which in this part I'm going to tell you, explain you what is verb and the different types of verb. Okay, let's begin. And that is an analysis of sentence. In this analysis, पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, subject पढ़ा था. As I told you कि how many parts of the subject, कितने parts होते हैं subject, sorry sentence के, there are 2 part of sentence, that is subject and predicate. And subject, how many forms of the subject? Subject has 6 forms. Subject has 6 forms, as you can see. It is given already given in your book. Noun, pronoun, infinitive, gerund, phrase, and clause. This can be these 6 things can take the place of the subject. Okay, so now I am going to the second part of a sentence, that is predicate. And in the predicate, what is the most important thing? सबसे important thing क्या है? In the predicate we must have a verb, कि उसमें हमेशा एक verb होना चाहिए. And what is a verb? I am going to explain you now. As you know that verb is a word which shows an action or state of being. आपको पता है कि verb क्या होता है? या तो it shows an action, sometime it will be an action word, or sometime it will be the state of being. Okay, यानी state of being होता है. So I have written the example here. In the first example, what is the first example? The clock strikes 1. तो as you know that what is the subject? Subject देख लीजिए आपके पास इस sentence में subject क्या है? What is the subject? The subject is clock. And what is the predicate? Strikes 1. And in the predicate, what is a verb? That is strikes. And strike is what? Does it show an action or a state of being? क्या ये action word है या state of being है? आप बताइए. Obviously it is obvious that it is an action word, क्योंकि ये striking performs an action, tells an action of striking. तो आप ये क्या हो जाएगा, ये आपका action verb होगा. So in this sentence, the first sentence, we have an action verb. Now look at the second sentence. What is the second sentence? She is busy in cooking food. Okay, so what is the according when we analyze the sentence, तो हम कैसे analyze करते हैं कि उसमें हम subject बताते हैं, verb बताते हैं और object बताते हैं. तो what is the subject here? The subject is she, and what is the predicate here? Is busy in cooking food. अच्छा, ये आपका predicate है. और मैंने आपको बताया है कि predicate में what is the most important thing in predicate, वो होता है आपका verb. अब first example में तो we have an action verb, हमारा action verb था. In the second example what we have, हमारे पास कौन सा verb है? It is not an action verb, ये action verb नहीं है. Not showing any action, कोई action को show नहीं कर रहा है. It is only a state of being, ये state of being है. So what she is a state of being, and but it is also acting as a verb. So this is the a little description about the verb. Okay, what is a verb? Verb is a word that shows an action or state of being. Many times your teacher explained you, your grammar teacher explained you about this part of speech. ठीक है, ये बहुत important है. Without verb no sentence can be made. कोई भी sentence नहीं बन सकता. Without subject बन सकता है, without object sentence form हो सकता है, but it is impossible to make the sentence without verb. Okay, let's come to its types. अब इसकी types में आते हैं. सबसे पहले हमारे पास है finite verb, and the second इसका जो है एक finite verb होता है, दूसरा हमारे पास होता है non-finite verb, and the second type is transitive and intransitive verb. So I am going to explain you first the difference between the finite verb, what finite verb is, and what is non-finite verb, and what is the main difference. How can we identify, how can we recognize in a sentence, हम कैसे recognize करते हैं अपने sentence में. Okay students, now what is finite verb? Finite verb is actually act as a verb. राइस बात है, वर्ब है तो वर्ब की तरह एक्ट करेगा. बट समटाइम्स वी हैव अ वर्ब but not acting as a verb, not only acting as a verb, sometimes they act as a noun, sometimes they act as an adjective. तो हमारे पास जो है वो यहाँ जो फाइनाइट वर्ब होते हैं ये ऑलवेज बी वर्ब. ठीक है, ये हमेशा वर्ब होते हैं, या तो स्टेट वर्ब्स होते हैं या फिर वो एक्शन वर्ब होते हैं.
second thing is that it indicate the person, number and mentioned here that के indicate करता है। सबसे पहले जो इसका main purpose होता है कि tense को indicate करता है, जो भी sentence का tense होता है वो उसको indicate करता है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा tense है। I live in Pakistan, obviously this is present tense। मैं अभी present continuous, present perfect या present perfect continuous की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक जो जनरल टाइम है present past और future की बात कर रही हूँ। तो this is responsible to tell the tense कि ये present tense है। और आप ये देख लीजिए कि इसका अगर ये I के साथ है तो विदाउट S और ES है, तो दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो है व्हाट इज द आइडिया वी गेट फ्रॉम दिस सेंटेंस के जो फाइनाइट वर्ब होते हैं दे ऑलवेज चेंज देयर फॉर्म्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर ये हमेशा अपनी फॉर्म उस वक्त चेंज करते हैं जब यहाँ पर हमारा चेंजेस आ रही होती है। यहाँ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है। और दिस इज ओनली दैट वर्ब, देयर इज ओनली वर्ब दैट शोज द टेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर फाइनाइट वर्ब। लेट्स हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने आपकी को मजीद ये एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल लिखी है। व्हाट इज एन एग्जांपल हियर, दे वर वेटिंग इन द रूम। सो व्हाट इज, पहले हम इसको एनालाइज कर लेते हैं इसको सेंटेंस को कि इसके कितने पार्ट्स हैं। देयर आर टू पार्ट्स, सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट, दे एंड वर वेटिंग इन द रूम, इट इज अ प्रेडिकेट। अच्छा, अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपको ये बताइए सबसे पहले कि कौन सा चीज़ जो है, कौन सा वर्ब वेटिंग, ये कौन सी चीज़ आपको जो है वो टेंस को इंडिकेट कर रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इफ़ आई फॉर इंस्टेंस अगर मैं वर्ड हटा देती हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टेंस इज इट? नो, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। वेटिंग इज नॉट इंडिकेटिंग दैट दिस इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो कौन सी चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? दिस इज द वर्ब। दिस इज द वर्ड दैट इंडिकेट्स यू दैट दिस इज पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस है, ये टाइम को शो कर रहा है। और देख लीजिए, मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग वॉज, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ड लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर जो है वो आता है ऑफ द सब्जेक्ट। इसी तरह तो हमारा फाइनाइट वर्ब कौन सा हो जाएगा, वर्ब इज द फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट्स एक्टिंग एज अ वर्ब एंड इंडिकेटिंग द टेंस एंड इंडिकेट द पर्सन और नंबर। सो दिस इज द फाइनाइट वर्ब। अच्छा, मैं आपको इसकी हिंट बता देती हूँ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो राइट आफ्टर द सब्जेक्ट जो भी वर्ब होगा, चाहे वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे वो आपका मॉडल वर्ब हो, चाहे वो आपका बेस प्रेजेंट फॉर्म हो, तो वो आपका हमेशा कौन से वर्ब्स होते हैं, वो आपके होते हैं फाइनाइट वर्ब। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपल्स और बेस फॉर्म। मैं बेस फॉर्म और पार्टिसिपल की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रही हूँ। दैट ऑलवेज बी द फाइनाइट वर्ब। उसके अलावा जितने भी वर्ब्स होते हैं वो आपकी दूसरी कैटेगरी में फॉल डाउन होते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ नॉन फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ वर्ब। वो भी वर्ब ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन समटाइम्स जब किसी भी सेंटेंस में आपके पास ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव की एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, उसमें आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। लेकिन व्हाट इज़ द मेन कंसर्न, व्हाट इज़ द मेन टॉपिक कि हमें डिफ्रेंशिएट करना आ जाए कि सेंटेंस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। दूसरा इसका जो वो है पॉइंट है कि नहीं, ना तो ये इंडिकेट करता है पर्सन को, ना नंबर को, ना टेंस को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें हम जो है वो टेंस नहीं बता सकते, ये कभी भी टेंस को शो नहीं करता है। अच्छा, आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स में, शी हैज़ बॉट अ न्यू कार। अब आपको फाइनाइट वर्ब तो पता ही है कि व्हाट इज़ अ फाइनाइट वर्ब, एज आई टोल्ड यू कि जो फर्स्ट वर्ब होता है राइट आफ्टर द सब्जेक्ट वो हमेशा आपका क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। जो आपके टेंस ऑफ द सेंटेंस को शो कर रहा होता है, एक्टिंग नॉर्मली एक्टिंग एज अ ऑलवेज एक्टिंग एज अ वर्ब होता है और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो आता है। तो आप देख लीजिए व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब इन दिस सेंटेंस, हैज है, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। और एक सेंटेंस में दिस इज point to remember is that कि in each clause we have only one finite verb. हर clause में एक finite verb होता है. If we have multiple clauses we have multiple finite verb. लेकिन एक one clause has one finite verb. This is very important. अच्छा जो अब ये क्या है? What is this? This is also a verb. यानी क्या क्या था कि ये verb भी होता है, noun भी होता है और adjective भी होता है. तो ये acting as a verb कर रहा है, लेकिन
It is not responsible to show the tense. It does not come according to the person or number. ठीक है, ये सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के लिहाज से ये नहीं आता, ना ये इंडिकेट कर रहा है टेंस को. तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? दिस विल बी योर फाइनाइट वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब. Okay, so this is the has is a finite verb and what is a non-finite verb. Now we have a next example. He will not travel to England. अब देख लीजिए what are the two parts of a sentence. He is the subject and will not travel to England. It's a predicate. अच्छा, अब इसमें हमें वही डिफरेंट वो आइडेंटिफाई करना है कि what is a finite verb here. तो will आपका क्या हो जाएगा? दिस इज बिकॉज will is responsible to indicate the tense acting as a verb and comes according to the person subject के accordingly आता है. आप देख लीजिए, और फर्स्ट वर्ब है राइट आफ्टर द सब्जेक्ट, तो ये आपका क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा. एंड व्हाट अबाउट द ट्रैवल क्या होगा? दिस विल बी नॉन फाइनाइट वर्ब बिकॉज इट इज़ नॉट शोइंग द टेंस, it is not indicating any number or person and it is but acting as a verb, लेकिन verb की तरह act कर रहा है, so it will be non-finite verb. Now we have a next example. I like swimming. What is the two part of the sentence? Subject I is the subject, like swimming is the predicate, and what is the verb here? Verb यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या है? Like है. Swimming is not your verb. Swimming is here acting as a noun. मैंने आपको बताया था ये verb भी होता है, noun भी होता है और adjective भी होता है. तो यहाँ पर ये noun as an adjective जो है वो as a noun काम कर रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका finite हो जाएगा, and this will be your non-finite verb. Okay, this is about the finite and non-finite verb. Now I'm going to explain you the transitive verbs and intransitive verb. And I think so your teacher, while she explained you active and passive voice, and she explained you what are the transitive verbs and what are intransitive verbs. Okay, and then she told you in detail, she explained everything. I'm just recapitulating quickly this topic because you are familiar with this topic. तो transitive verbs क्या होते हैं? Transitive verbs are those verbs when the verb to pass the action over someone or something. जब हमारा कोई भी action I'm not talking about the state of being. This is very point to be noted here. यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखिए कि यहाँ पर हम कौन से verbs की बात करेंगे? हम action verbs की बात करेंगे, और वो यहाँ पर action जो है वो या तो किसी over someone or something, यानी किसी पे पास किसी चीज़ पे होगा या किसी शख्स किसी पर्सन पे पास होगा, तो वो क्या होता है? वो आपका ट्रांसिटिव वर्ब्स होता है. एंड दे ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट. हमेशा उनके लिए क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. एंड इट ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट. हमेशा इसमें कौन सा जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उसका हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है. ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है दिस ऑब्जेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन whom और what. ये वर्ब के हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब के whom या what का आंसर देगा. whom और what का आंसर किस तरह देगा? द फार्मर हार्वेस्ट द फील्ड. तो व्हाट इज द वर्ब हियर? एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर एक्शन वर्ब होना चाहिए, तो एक्शन वर्ब के what का आंसर मिल रहा है हमें हार्वेस्ट. what हम हार्वेस्ट का मतलब होता है टू कट. ओके, तो क्या कट कर रहा है? फील्ड्स को हार्वेस्टिंग हो रही है फील्ड्स की. तो यहाँ पर जो है आपके पास ये क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ये समथिंग है, समवन नहीं है. लेकिन मैं कहूँ आई विल पनिश यू, तो whom आई एम पनिशिंग, अब मैं किसको पनिश कर रही हूँ? यू. तो हियर द एक्शन पनिश इज पासिंग ओवर समवन. यहाँ पर जो पनिश का एक्शन है वो किस पे पास हो रहा है? किसी पर्सन पे. Now we have an intransitive verb. Intransitive verb are what? Intransitive verb do not pass the action over an object. यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास हमें कभी भी जो है वो एक्शन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे पास नहीं होता. इसका मतलब ये है कि आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द एक्शन verb, we do not have any noun or pronoun. हमारे पास कोई pronoun और noun नहीं होता. Sometimes we have an adjective, sometimes we have an adverb और other phrases होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई noun नहीं होता है उसके right after the action verb. So we have an example. As you can see, cannot have an object. The boy goes to the mosque. ठीक है, अब यहाँ पर going is the action and go का action किसी पे पास नहीं हो रहा, because यहाँ पर ये go is always, हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा intransitive verb होता है. कभी भी जो है वो go का action किसी someone or something पे पास नहीं हो सकता. Goes is an intransitive verb that does not have an object.
उसमें हम कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये मैंने आपको बताया कि इसका पता कैसे चलेगा कि आपको ये इंट्रांसिटिव है। आप उसके बाद देखिए गोज़ के बाद व्हाट कम्स हियर, देयर इज़ अ प्रपोजिशन, यहाँ प्रपोजिशन है, उसके फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है। देयर इज़ नो नाउन एंड प्रोनाउन, इसके बाद कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की में मेन डिफरेंस है वो यही है कि आपके पास जो है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हमेशा जो है वी हैव अ नाउन और प्रोनाउन, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद वी डू नॉट हैव नाउन और प्रोनाउन। दे मे एंड विद द वर्ब एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। और इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे whom और what, यहाँ पर द क्वेश्चन इसके क्या हो सकते हैं, यू कैन आस्क विद दिस फॉर्म व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई। ठीक है, आप यहाँ पर वॉक, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई का आंसर दे सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज अबाउट ट्रांजिटिव और intransitive verb. Hopefully you have understood whatever I explained you in this lecture. Inshallah ta'ala this will be quite helpful. Don't forget and recapitulate whatever I explained you. Watch this video again and again, so this will make your concept clear. आपको concept clear होगा तो आप जो है वो अच्छे तरीके से जो book exercises हैं उसको attempt कर सकेंगे। Okay, this is all for today. Inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.